میں نے بہن کی شادی میں ایک لڑکی دیکھی جو کہ بہت حسین تھی۔ میرا اس پر دل آ گیا، لیکن مجھے پتہ لگا کہ اس کی پہلے بھی 3 طلاقیں شادی کی رات ہی ہو چکی تھیں، کیونکہ وہ منہ دکھائی میں دلہے سے کچھ ایسا مانگتی کہ وہ اسے طلاق دے دیتا ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس سے محبت ہے، اس لیے میں اس کی ہر شرط پوری کروں گا، اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی۔ گھونگھٹ اٹھانے لگا تو وہ بولی، میری ایک شرط ہے، وہ پوری کرو گے تو گھونگھٹ ہٹاؤں گی۔ میں بھی مان گیا اور اس نے شرط بتائی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میرا نام ملک دلاور ہے اور میں اپنے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ ہوں جس کی پیدائش پر گھی کے چراغ جلائے گئے، کیونکہ میں 5 سال بعد اپنے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ ملکوں کے خاندان کو وارث مل گیا تھا، اس لیے سب مجھے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھتے۔ میرے لاڈ پیار میں کوئی کمی نہ چھوڑی گئی تھی۔ میں نے جس چیز کی خواہش کی وہ مجھے مل کر رہی۔ میں 3 سال کا تھا جب اماں نے میری تنہائی دور کرنے کے لیے خالہ کی بیٹی گود لے لی۔ میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا، اس کی بھی اماں اور ابا میں جان بستی تھی۔ کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ اماں ابا کی سگی اولاد نہیں۔ اس کا نام ماں بینا تھا اور سب اسے پیار سے بینا کہتے تھے۔ بینا پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اسی وجہ سے میں نے ضد کر کے اسے کالج بھیجا، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کی اجازت نہ تھی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھا نہیں تھا، اس لیے بینا میرے برابر میری کلاس میں آ گئی۔ ہم دونوں بہن بھائی اکٹھے کالج جاتے تھے۔ انٹر کرنے کے بعد اماں اور ابا نے اسے گھر بٹھا لیا کہ اب گھر بیٹھ کر پڑھو۔ میرے کچھ دوستوں کو اسکالرشپ پر باہر جا کر پڑھنے کا موقع ملا تو میں نے اپنے باپ کو راضی کیا کہ چاہے جتنی بھی فیس ہو مجھے بھی باہر کے ملک جا کر پڑھنا ہے۔ میرے بابا جان اور ماں مجھے اتنی دور تو نہیں بھیجنا چاہتے تھے، مگر پھر بھی میری ضد کے آگے ہار گئے۔ یوں 18 سال کی عمر میں میں نے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ مجھے وہاں پڑھتے ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک حادثے میں ابا کا انتقال ہو گیا۔ مجھے ابا کے آخری دیدار کا موقع نہ مل سکا کیونکہ فلائٹ نہ مل سکی۔ میں تیسرے دن پہنچا تھا۔ سارے رشتہ دار جائیداد کے بٹوارے کی بات کر رہے تھے جب میری ماں نے اندر سے آ کر سب کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ ملک دلاور اب اس ساری جائیداد کا مالک ہوگا۔ میں حصہ بھی اپنے بیٹے کے نام کر دوں گی۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ ان کی اونچے خاندان میں شادی کر کے ٹرک بھر کے جہیز دے دیا جاتا تھا۔ مجھے دولت سے کوئی مطلب نہیں تھا، دولت باپ کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتی نا۔ میں تھوڑے دن رہ کر واپس چلا آیا تھا۔ پڑھائی میں پہلے دل نہیں لگتا تھا اور بابا کے انتقال کی وجہ سے میں پڑھ ہی نہ سکا اور فیل ہو گیا اور اسی کلاس میں رہ گیا، جبکہ باقی اگلی کلاس میں چلے گئے۔ میں سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا، مستقبل کی جیسی کوئی فکر ہی نہ تھی، بس یوں ہی زندگی جیے جا رہا تھا۔ مجھے وہاں دوسرا سال تھا جب اماں جان نے مجھے فون کر کے حکم سنایا تھا کہ جلد از جلد پاکستان آنے کی تیاری کروں، کیونکہ بہن کی شادی طے کرنی ہے۔ بہن کی شادی کا سن کر ہی میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ فوراً واپسی کی فلائٹ پکڑی اور حویلی پہنچ گیا۔ بینا کا رشتہ خاندان میں ہی طے ہو گیا تھا اور اماں نے اس کے لیے ایسا شاندار جہیز بنایا تھا کہ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ بینا بھی بہت خوش لگ رہی تھی۔ مہندی کی رات میں بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہا تھا جب بینا کے ساتھ بیٹھی خوبصورت لڑکی پر میری نظر پڑی۔ وہ بہت حسین تھی، اتنی خوبصورت کہ ہر لڑکا اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں بھی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے اس سے پہلے نظر کی محبت ہو گئی تھی، پھر باقی سارا وقت میں اسے دیکھتا ہی رہا۔ وہ میری بہن کی سہیلی لگ رہی تھی۔ مہندی کے بعد جب سب لوگ گھروں کو چلے گئے تو میں نے بہن سے پوچھا، وہ پیلے غرارے اور لال دوپٹے والی لڑکی تمہاری سہیلی ہے؟ بہن کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اماں نے منہ بنا کر کہا، توبہ توبہ بیٹا، وہ کیوں بینا کی سہیلی ہوگی بھلا؟ بینا ایسی لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتی، وہ تو پڑوسن ہے ہماری۔ میں سن کر ٹھٹک گیا کہ ایسی لڑکی سے کیا مراد؟ اماں سے پوچھا تو کہنے لگی، اس کی 3 شادیاں ہو چکی ہیں اور تینوں شادیوں میں شادی کی رات ہی اسے طلاق ہو جاتی رہی ہے، 3 طلاقیں لے چکی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، اسے طلاق کیوں ہوئی اماں؟ اماں بتانے لگی کہ وہ لڑکی شادی کی رات ہی لڑکے سے منہ دکھائی میں کچھ ایسا مانگتی تھی کہ وہ مجبور ہو کر طلاق دے دیتا، کیونکہ وہ اس کی شرط پوری نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یہ ساری بات سن کر بہت حیرانی ہوئی،
क्योंकि चेहरे से वो बिल्कुल ऐसी नहीं लगती थी कि उसकी 3 शादियां हो चुकी हैं। ये सोचकर भी मुझे उलझन में डाल रही थी कि आखिर वो लड़की ऐसी क्या ख़ास शर्त रखती होगी जो किसी भी मर्द के लिए इतनी नाकाबिले कबूल होगी कि वो उसे तलाक ही दे दे। सारी रात मैं उसे सोचता रहा था। वो लड़की मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। मैं उस पर दिलो जान से फिदा हो चुका था। अगले दिन बारात थी और वो कल से भी बढ़कर हसीन लग रही थी। मेरी तो नजरें ही उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसने भी शायद ये महसूस कर लिया था, इसलिए कुछ ही देर बाद ही वो मेरी नज़रों से ओझल हो गई। वलीमे वाले दिन मैं उसके पीछे पीछे फिरता रहा। आखिर कुछ दिनों बाद मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बोली मेरा नाम नगीना है और मेरी 3 तलाक़ें हो चुकी हैं। मैं अपने शौहर के सामने एक शर्त रखती थी, अगर वो इस शर्त को पूरा कर पाएगा तभी मुझे हाथ लगा सकेगा, वरना उससे मुझे तलाक देनी होगी। मगर कोई भी मेरी शर्त पूरी न कर सका और शादी की रात ही मुझे तलाक लेकर आना पड़ा। मैंने बेसब्री से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी हर शर्त को पूरा करने को तैयार हूँ, तुम बस हाँ करो। कहने लगी, ठीक है, तुम अपनी माँ और बहन को लेकर रिश्ता लेने आ जाओ। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। बहन की शादी के कुछ महीनों बाद ही मैंने अपनी शादी का भी जिक्र छेड़ दिया। अम्मा को जब मालूम हुआ कि मैं नगीना से शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ तो उन्होंने खूब हंगामा मचाया और मुझे बास करने की कोशिश की, मगर मेरे सर पर तो इश्क का भूत सवार हो चुका था। मजबूरन अम्मा को मानना पड़ा और हमारी शादी तय हो गई। शादी से एक दिन पहले तरह तरह के ख्याल मेरे जहन में आ रहे थे कि वो मुझसे क्या मांगेगी, क्या शर्त रखेगी। शायद वो मेरी जायदाद का मुतालबा करे। मैंने सोचा वो जिस चीज़ का भी मुतालबा करेगी मैं उसे दूंगा, आखिर उससे मोहब्बत है मुझे। शादी का दिन आ पहुंचा। मुझ समेत सबकी सांस सूखे हुए थे। पूरा मोहल्ला सरगोशियां कर रहा था कि नगीना आज की रात इस शौहर से क्या शर्त रखेगी। इस सारी सूरत हाल में सिर्फ मेरी अम्मा को तसल्ली थी कि नगीना आज रात चौथी तलाक लेकर हमेशा हमेशा के लिए उनके घर से चली जाएगी। मगर मैंने अज़म किया था कि अगर वो मेरी जान भी मांगेगी तो मैं दे दूंगा, मगर खुद से वादा किया था कि किसी सूरत तलाक नहीं दूंगा। शादी हुई और वो मेरे घर में मेरे कमरे में आ गई। मैं बहुत खुश था। नगीना ने घूंघट ओढ़ रखा था। कहने लगी, पहले मेरी शर्त सुन लो, अगर पूरी करने का वादा करोगे तभी घूंघट उठाऊंगी। मैंने कहा, तुम अपनी शर्त बताओ, मैं हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। कहने लगी, सोच लो, ऐसी शर्त शायद तुम पूरी न कर सको। मैंने कहा, जो भी शर्त है मैं पूरी करूँगा और हर हाल में करूँगा, तुम बस शर्त बताओ। मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए इसने जो शर्त बताई वो सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर क़यामत टूट गई हो। मैं ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकता था। उसने कहा था कि अपनी बहन माँ बीना को तलाक दिलवाओगे तभी मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगी, वरना मुझे अभी तलाक दो। मैंने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, ये शर्त वापस ले लो, कुछ और शर्त रख लो। इतनी कड़ी शर्त मैं पूरी नहीं कर सकता। एक भाई अपनी बहन का घर कैसे बर्बाद कर सकता है। वो घूंघट उठाकर कहने लगी, अगर मेरी शर्त कबूल नहीं तो मैं इस शर्त में थोड़ी सी नरमी कर सकती हूँ। वो इस तरह कि तुम थोड़ा वक्त ले लो, सोच समझ लो, फिर फैसला कर लो। मैं अपनी शर्त बदल नहीं सकती। वो आखिर ऐसी शर्त क्यों रख रही थी, मैं समझने से कासिर था। मेरी जान मांग लेती, दौलत मांग लेती, मगर वो तो मेरी बहन के घर की तबाही मांग रही थी। कहीं इसकी मेरी बहन से कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं जिसका बदला वो इस तरह लेना चाहती हो। मैंने कुछ सोच समझकर फैसला किया कि मुझे इस बात की तह में जाना चाहिए कि आखिर उससे मेरी बहन से मसला क्या है। मैंने कहा, मुझे 2 हफ्ते दो, मगर मेरी भी एक शर्त है कि 2 हफ्ते तक मेरी बहन और बहनों यहाँ हमारे घर ही रहेंगे। मेरी शर्त सुनकर वो थोड़ा परेशान हुई, मगर फिर कहने लगी, ठीक है, मगर सिर्फ 2 हफ्ते, इसके बाद तुम अपनी बहन को तलाक दिलवाओगे। मेरे दिल में शक पैदा हो गया था कि आखिर मेरी बीवी का क्या फ़ायदा होता अगर मेरी बहन को तलाक हो जाती तो। सिर्फ यही मालूम करने के लिए मैंने 2 हफ्ते मांगे, वरना उसकी शर्त वाकई ऐसी थी कि मैं उससे पूरा नहीं कर सकता था। मैं सोफे पर जाकर लेट गया। अगली सुबह मेरे वलीमे की थी। मैंने बहन और बहनोई को कहा कि कुछ दिन यहीं रह लो, फिर चले जाना।
मेरी बहन तो रुकने पर आमादा नहीं थी, मगर बहनोई मान गया। मैं देख रहा था कि मेरी बीवी मुसलसल मेरी बहन और बहनोई को घूरे जा रही है। उसके बरक्स मेरी बहन उसके नाज उठाते नहीं थक रही थी। मैं बहुत मजबूर हो गया था। एक तरफ मेरी मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ मेरी बहन। मेरी बीवी आज रात भी अपनी शर्त पर कायम रही थी। मैं सोफे पर जाकर सो गया। अचानक आधी रात को मेरी आंख खुली तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी बीवी बाहर से आई है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मुझे उठते देखकर कहने लगी, मैं पानी पीने गई थी। कोई और मौका होता तो इस वक्त उसे बाहर से आते देखकर मैं उसकी वजाहत पर यकीन कर लेता, मगर जब अब तो शक ही किया जा सकता था। मैं फौरन अपनी बहन के कमरे की तरफ भागा कि कहीं उसने गुस्से में मेरी बहन को कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो। बहनोई मुझे दरवाजे पर ही टहलता हुआ नजर आया तो मैं हैरान हुआ। रात के 2 बज रहे थे। मेरे पूछने पर कहने लगा, नींद नहीं आ रही थी तो टहल रहा था। मैं वापस कमरे में आ गया। मेरी बीवी तब तक सो चुकी थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो बहुत मासूम नजर आ रही थी। उसको देखकर लगता नहीं था कि वो इतनी सफाक हो सकती है कि अपनी जैसी किसी औरत का घर उजाड़ दे। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं कोई और बात तो नहीं, मगर और क्या बात हो सकती है। अगले 2 दिन मामूल के मुताबिक गुजरे। वो कमरे में ही रही थी। मेरी बहन अलबत्ता हैरान ज़रूर थी कि मैंने उससे क्यों रोका हुआ है यहाँ। पूछ रही थी मगर मैं क्या बताता कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैंने कहा, वैसे ही बस कुछ दिन मेरे पास रहो। बहन के सवाल का जवाब देते देते मैं चौंका। मुझे उसके सर पर चोट का निशान नजर आया। मेरा जहन फौरन मेरी बीवी की तरफ चला गया। कहीं उसने तो अपनी नफरत में कुछ किया तो नहीं था। मैंने पूछा, बीना, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? किसी ने मारा है? बीना हंसकर बोली, क्या हो गया है? रात अंधेरे में उठी थी तो सर अलमारी से टकरा गया। मुझे भला कौन मारेगा? मैं चुप हो गया। उसी शाम मैं बाहर से घर आया तो लॉन में नगीना और बीना बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी, ऐसे जैसे पक्की दोस्तें हों। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ कि चलो मेरी बीवी की बीना से दोस्ती हो गई है। अब वो अपनी शर्त से बाज आ जाएगी। मगर वो अपनी शर्त पर हनूस कायम थी। कहने लगी, बीना की तलाक तो होकर रहेगी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से में गुलदान नीचे ज़मीन पर फेंका और खुद बाहर चला गया। रात के 10 बजे मेरी वापसी हुई तो बीना के कमरे की तरफ पहले चला गया ताकि उसकी खैरियत दरियाफ्त कर लूं। कमरे से बहनोई के चीखने की आवाज़ आ रही थी। वो मेरी बहन पर गुस्सा हो रहा था और चीज़ें फेंक रहा था। मुझे समझ आ गया कि ज़रूर मेरी बीवी ने ही कुछ उल्टा सीधा मेरे बहनोई को बोला होगा, क्योंकि उसकी आजकल मेरी बहनोई के साथ बहुत बातचीत चल रही थी। 1 हफ्ता गुजर चुका था और अभी तक मैं कुछ भी मालूम नहीं कर पाया था। इसकी बीना से कोई दुश्मनी मुझे नजर नहीं आई थी। मेरी अम्मा तो मेरी तलाक से मायूस होकर अपने कमरे की होकर रह गई थी। उस दिन मैं काम से थोड़ा जल्दी किसी को भी बताए बगैर घर आ गया। क्या देखता हूँ कि मेरी बीवी मेरे बहनोई के हाथ पर हाथ मारकर हंस रही है। मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि हमारे ख़ानदान में रवाज नहीं था कि इस तरह फ्री होकर मर्दों से बात की जाए। मुझे देखकर बहनोई तो घबरा गया और अपने कमरे में चला गया, मगर वो पुरसकून अंदाज में बैठी रही। कहने लगी, तुम्हारा बहनोई खुद यहाँ मेरे पास आया था। मैंने नहीं बुलाया था, इसलिए कुछ भी कहने से पहले अपनी शर्त याद रखो। 6 दिन रह गए हैं, या तो अपनी बहन के तलाक के पेपर्स बनवाओ या हमारी तलाक के। इससे पहले मैं उससे कुछ कहता, बीना की चीखों से पूरा घर लरज उठा। मुझसे पहले नगीना भाग कर अंदर गई। बीना सीढ़ियों से गिर गई थी और उसका बहुत खून बह गया था। डॉक्टर ने फौरी तौर पर ब्लड ग्रुप का इंतजाम करने को कहा तो मेरी बीवी ने आगे बढ़कर कहा, डॉक्टर साहब, जो ब्लड ग्रुप मेरी नंद का है वही मेरा भी है। आप मेरा खून ले लें, जितना चाहे। उसे डॉक्टर अपने साथ ले गई। मैं तो हक्का बक्का ही रह गया था। अभी थोड़ी देर पहले वो बीना की तलाक करवाने पर बज़िद थी और अभी उससे अपना खून दे रही थी। ये सब माजरा मेरी समझ से बाहर था कि क्या हो रहा है। मैं तो अपनी ही बीवी को अभी तक समझ नहीं पाया था। बीना को अगले दिन छुट्टी हुई और इस एक दिन में मेरी बीवी ने मेरी बहन का सगी बहनों से भी बढ़कर ख्याल रखा था। मुझे लगा कि अब वो अपनी शर्त से पीछे हट गई होगी। इसके दिल में नरम कोना पैदा हो गया होगा। मगर जब घर गए तो इसकी फिर वही रट थी कि बीना को तलाक दिलवाओ। मैं जब वजह पूछता तो कहती खुद मालूम करो, और कभी कहती कोई वजह नहीं है। वो अजीब थी।
मुझे उसकी बातों की और हरकतों की समझ नहीं आती थी। एक तरफ बीना का इतना ख्याल और दूसरी तरफ उसी के घर तोड़ने की बात, जबकि मेरी बहन अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। बस उसकी मेरे बहनोई के साथ बढ़ती मुलाकातें मुझे अच्छी नहीं लगती थीं। यूं ही 13 दिन गुजर गए। रोज़ मेरी बीवी अपनी शर्त मुझे याद दिला देती और मैं सुनकर चुप रहता। आखिरी रात आ गई। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाया था कि मुझे क्या करना है। ये सच था कि किसी भी सूरत बीना का घर बर्बाद नहीं कर सकता था, मगर नगीना को भी खोने का हौसला मैं खुद में नहीं पाता था। बीना ने कई बार मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी थी, मगर मैं टाल देता था। आखिर जब कोई फैसला न हो पाया तो मैं सोफे से उठ गया ताकि सारा कुछ अपनी माँ को बताकर मशवरा ले सकूं। जैसे ही मैं सोफे से उठकर खड़ा हुआ, दंग रह गया, क्योंकि मेरी बीवी तो कमरे में थी ही नहीं। कहीं वो रात के इस पहर बहनोई से मिलने तो नहीं चली गई थी। इस ख्याल के आते ही मैं कमरे से बाहर भागा। बहन के कमरे से शोर की आवाज़ आई तो मैंने बगैर सोचे समझे दरवाज़ा खोल दिया। अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा बहनोई हाथ में बेल्ट पकड़े बुरी तरह से पीट रहा था और नगीना भी वहीं मौजूद थी और शायद उसी के कहने पर यह सब हो रहा था। मैंने आगे बढ़कर बहनोई को धक्का देकर पीछे किया, अपनी बहन को गले से लगाया जो रो रही थी। इतनी देर में अम्मा भी आ गईं। अम्मा ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मैंने कहा, अम्मा आपको बहुत शौक था ना मेरी तलाक का, अब खुश हो जाएं, कल आपके दोनों बच्चों की तलाक हो जाएगी। बीना कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं भाई? मैंने कहा, तुम्हारा शौहर तुम पर बीना की वजह से हाथ उठा रहा था। मेरी बीवी और तुम्हारा शौहर आपस में मिले हुए हैं। ये दोनों, इनको मैं कितने दिनों से देख रहा था, गपशप करते हैं और रातों को मिलते हैं, मगर मैं नज़रअंदाज करता रहा। मगर आज नहीं, ये तुम्हारे शौहर को फंसा रही है। और इससे पहले मैं बात मुकम्मल कर पाता, बीना ने मुझे रोक दिया। कहने लगी, बीना ने शादी की रात जो भी कहा आपसे वो सब मेरे लिए कहा था। मैंने उसे बहुत मना किया था, मगर वो नहीं मानी। मेरी और नगीना की दोस्ती बहुत पुरानी थी, मगर अम्मा के डर की वजह से मैंने कभी उन्हें बताया नहीं। नगीना की शादी हुई तो पता चला कि लड़के ने इससे बदला लेने के लिए शादी की है। उसने पहली ही रात नगीना को तलाक दे दी, क्योंकि एक वक्त में नगीना ने इस लड़के को शादी से इनकार किया था। इस लड़के ने भरपूर कोशिश की कि नगीना की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए, इसलिए दूसरी और तीसरी शादी पर उसने दुल्हों को शादी की रात ही जानबूझकर भड़का दिया और बेचारी 3 तलाकें लेकर घर बैठ गई। लोगों की नज़रों में अपनी बेटी का तासुर अच्छा बनाने के लिए इसकी अम्मी ने मशहूर कर दिया कि मेरी बेटी शादी की रात शर्त रखती है जो दुल्हा पूरी नहीं कर पाते। फिर मेरी शादी पर तुमने नगीना को पसंद किया। मैंने उसे बताया तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वो किसी और तजर्बे की भेंट नहीं चढ़ना चाहती थी। मेरी शादी हो गई, मगर अम्मा ने बहुत गलत इंसान से मेरी शादी करवा दी थी। इस शख्स से मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। बात बात पर ताने के तुम जायदाद में हिस्सा नहीं लाई। शकी था, मुझ पर हाथ उठाता था। मैं ये बात किसी को भी नहीं बता सकती थी। एक दिन बीना घर आई तो इसने मुझे मार खाते देख लिया। उसने कहा, तलाक ले लो, मगर मैं अपनी रवायतों रस्म और रिवाज को जानती थी कि बेटी का ससुराल से जनाजा ही उठे, इसलिए मैंने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया। मगर नगीना ने कहा, मैं तुम्हें इस वैशी इंसान से तलाक दिलवा कर रहूँगी। इसने शादी की रात तुमसे मेरी तलाक वाली शर्त इसलिए रखी थी ताकि तुम अपनी बहन के हवाले से थोड़ा मोहतात हो जाओ। इसने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए ताकि मैं अपने शौहर के साथ यहीं रुक जाऊं, ताकि तुम अपनी आंखों से अपने बहनोई की हरकतें देख सको। मेरा शौहर अयाश फितरत का है। खूबसूरत लड़कियों के आगे पीछे फिरना इसका पसंदीदा काम है। नगीना को देखकर भी इसकी राल टपक गई। उस दिन मैंने उससे कहा कि मेरी भाभी को तो छोड़ दो, मगर उसने गुस्से में सीढ़ियों से नीचे मुझे धक्का दे दिया। अभी भी ये मुझे क्यों मार रहा है, मैं समझ नहीं पा रही थी कि बीना मुझे बचाने आ गई और इसे रोकने लगी। तभी तुम आ गए। नगीना मासूम है, इसने जो किया मेरे लिए किया, ताकि तुम देख सको कि मेरी जिंदगी कैसे जा रही है। मैं ये कहानी सुनकर शर्मिंदा सा नजरें झुका कर रह गया। भाइयों को इतना भी लापरवाह नहीं होना चाहिए कि बहनों के साथ जो मर्जी होता रहे, उन्हें पता भी न चले। नगीना कहने लगी, मैं बस बीना की वजह से इससे हंसकर बात कर लेती थी। अगर ऐसा ना करती तो वो मेरी वजह से बीना को ताने देता और मारता। मैंने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए वो शर्त नहीं रखी थी, सिर्फ ये चाहती थी कि तुम इस बहाने
अपनी बहन के हाल पर ही थोड़ा ध्यान देते। मेरा बहनोई गुस्से से बोला, सारा कसूर तुम्हारा है। सारी दौलत और जायदाद अपने नाम लगवाकर अपनी बहन को खाली हाथ भेज दिया। ऐसी औरत की कौन इज्जत करेगा। मैंने अपने बहनोई को इसी वक्त उसे धक्के देकर निकाल दिया। गलती हमारी थी, हमारे रस्मों रिवाज की थी, जो बेटी को ब्याहते वक्त मरते दम तक वहीं रहने को कहते हैं। बेटियों को इनका जायज़ हक न देकर हम खुद उनकी इज्जत और वक़ार में कमी करते हैं। मैंने नगीना से माफ़ी मांगी कि मैं उसे गलत समझता रहा। उसकी शर्त भी पूरी हो गई थी। मेरी बहन को मैंने तलाक दिलवा दी थी और दोबारा इसकी बहुत अच्छी जगह शादी करवा दी और जायदाद में से भी हिस्सा दिया। आज 10 साल गुजरने के बाद हम दोनों बहन भाई साहिबे औलाद हैं और बहुत खुश हैं। अपनी कहानी के ज़रिए बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी बेटियों के घर आते जाते रहा करें और उनके तमाम हालात से ख़बरदार रहें और मुश्किल वक्त में बहन बेटियों को सहारा दें।